ৰাজস্থানত আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপিক সমালোচনা কৰে। ৰাহুল গান্ধীৰ মতে বিজেপিয়ে হিন্দুত্বৰ নামত ৰাজনীতি কৰে, ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰে, মূল বিষয়বস্তুৰ পৰা আঁতৰাই নিবৰ বাবে এনে ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰে বুলি আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অভিযোগ উত্থাপন কৰে। मैं आपको आज भाषण में दो बातें बताना चाहता हूं। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बीजेपी का लक्ष्य, आरएसएस का लक्ष्य कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, आदिवासियों को, दलितों को धन ना मिल जाए। वो चाहते हैं कि धन, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, वो चाहते हैं कि इस सोने की चिड़िया का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में रहे, अरबपतियों के हाथ में रहे और आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग इस धन के बारे में सवाल ना उठाए। অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী ভাষাৰ কৰাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল, কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। কংগ্ৰেছৰ লগত থকা ৰাইজৰ দল, জাতীয় পৰিষদ আদিয়ে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, কংগ্ৰেছেও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। কিন্তু ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি সম্পূৰ্ণ ওলোটা। ৰাজস্থানত ৰাহুল গান্ধীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে বিজেপি নেতৃত্ব ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় বিচাৰে, কিন্তু দুখীয়া লোকৰ বাবে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় নিবিচাৰে। ৰাজস্থানত এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিটো কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে ইংৰাজী মাধ্যম খোলা হ'ব, অথচ অসমত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিৰোধিতা কৰে এই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই। कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीख लेना। मगर अगर आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछो, भैया आप कहते हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखना, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम। सारे के सारे बीजेपी के बच्चे, अमित शाह के बेटे, राजनाथ सिंह के बेटे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सबसे अच्छी नौकरियां कॉल सेंटर, आईटी, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, सबसे अच्छी नौकरियों के लिए आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। और वो चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में रहे, बीजेपी के एमएलए उन पर पेशाब करें, वीडियो वायरल करें, और आदिवासी युवा ना पढ़ें, ना लिखें, ना अंग्रेजी बोलें। मैं चाहता हूं कि आदिवासी युवा अगर पायलट बनना चाहता है, अमेरिका में हवाई जहाज में जाना चाहता है, उसका हक बनता है। আমি ভাবো ভূপেন বৰা, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ আদিয়ে তেওঁলোকৰ এতিয়া মূল গুৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এই বক্তব্য ভালকৈ শুনাটো উচিত। ৰাহুল গান্ধীয়ে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, গতিকে অসমত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ বিৰোধিতা কৰি তেওঁলোকে যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নিদিয়ে। মন্তব্য দিয়াৰ আগতে ৰাহুল গান্ধীৰ বক্তব্য জানি লওক, ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কি ৰাজস্থানত সেই কথাও জানি লোৱাটো উচিত। ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি নিৰ্বাচনী সভাত কয় তেওঁৰ ভয়ত আজিকালি মোদীয়ে ভাষণ সলাবলৈ বাধ্য হৈছে। के समय हमने आंकड़े निकाले थे, देश को दिखा दीजिए। उस दिन के बाद
नरेंद्र मोदी जी के भाषण बिल्कुल बदल गए। पहले यहां राजस्थान में आते थे, मध्य प्रदेश में जाते थे, छत्तीसगढ़ में जाते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में 10-15 बार मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, जिस दिन मैंने कहा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब। আজি ৰাজস্থানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক বিশাল ৰোড শ্ব' উলিয়ায়। ৰাজস্থানত ওলোৱা এই ৰোড শ্ব'লৈ মন কৰক। বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰোড শ্ব'ত। সমগ্ৰ ৰাজস্থানৰ জয়পুৰ অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। এইদৰে এখন বাহনত উঠি হাত জোকাই আগবাঢ়িছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ৰাজস্থান দখল কৰিবৰ বাবে আচলতে বিজেপিয়ে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আমি দেখা পাইছিলোঁ ৰাজস্থানত। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক দেখা গৈছে কাষত, এইদৰে ৰাস্তাৰ কাষত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছে। ইয়াৰ মাজতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই ৰোড শ্ব'ত ভাগ লৈছে। এইখিনি সময়তে মোদী আজি ভাষণ দি ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। यहाँ के मुख्यमंत्री, मुझे तो दुख होता है मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, ऐसा मुख्यमंत्री आप कहां से लाए हो? मेरी माताएं बहनें, आपको पता है ये आपके मुख्यमंत्री ने आपको क्या कहा है? आप सुनोगे ना तो आपको भी गुस्सा आसमान पर पहुंच जाएगा। ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान में महिलाएं झूठ बोलती हैं, झूठे केस दर्ज कराती हैं। क्या मेरे राजस्थान की माताएं बहनें ऐसा कर सकती हैं? क्या कभी कर सकती हैं? क्या कोई मां बहन पुलिस थाने में जाकर के ये कहेगी कि मेरे चरित्र का हनन हुआ है, वो झूठी बात करने जाएगी? ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री, आपके मुंह से ऐसी बात निकली कैसे? यहां के मुख्यमंत्री और उनके एक साथी, उनके पक्के दरबारी, वो तो यहां के हर पुरुष को कलंकित करने के बयान देते हैं। मुझे बताइए, क्या कभी भी कोई समाज किसी बलात्कारी को मर्द कह सकता है क्या? सबके सब मुझे जवाब दीजिए। क्या किसी बलात्कारी को कोई मर्द कह सकता है क्या? क्या किसी महिला के साथ बदतमीजी करने वाले में किसी को मर्दानगी दिखती है क्या? मुख्यमंत्री जी के दरबारी सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि तो मर्दों की भूमि है, बलात्कार होना बहुत स्वाभाविक है। এটা প্ৰশ্ন হৈছে তেলেংগানাত এবাৰ কি হ'ব? কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে দাবী কৰিছে তেলেংগানাত এবাৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ হ'ব। আচলতে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেয়াৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে। আজি কংগ্ৰেছৰ নেতা অভিষেক সিংভিয়ে নতুন দিল্লীত এক সংবাদমেলত দাবী কৰে তেলেংগানাত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ অহাটো নিশ্চিত। कि केसीआर और उनका परिवार बौखला गए हैं, घबरा गए हैं और उनको पता नहीं कि कहां देखें, दक्षिण या पूर्व या उत्तर या पश्चिम, क्योंकि सब तरफ वही दीवार दिखती है जिसमें कि एक बहुत बड़ी हार, डिफीट इन कैपिटल्स, हार इन बड़ा HAR लगा दिख रहा है उनको। और केसीआर की अब कार हो गई है बेकार, क्योंकि तेलंगाना नहीं चाहता है ऐसी भ्रष्ट सरकार।